Hi and hello traders, welcome back to the video. Here I am going to show you the Nifty 50 and Bank Nifty analysis and prediction for tomorrow. Tomorrow is 21st of June. कल Monday है and we are going to like what the support and resistance or whatever the trend is, we are going to understand that. लेकिन पहले तो like you should understand that for tomorrow's trading you have to like be very strict and disciplined because volatility ज़्यादा भी हो सकता है और वहाँ पर थोड़ा बहुत ह्यूज मूव्स आ सकता है दैट यू हैव टू बी कॉशियस ऑफ, मतलब कि आपको अवेयर रहना चाहिए। स्टॉप लॉस और जो भी है आपको देना चाहिए सिस्टम में। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि इट वाज ए ग्रेट रैली फ्रॉम द डेज लोज एंड इट केम अप टू दिस पॉइंट। सो आई थिंक इफ यू आस्क मी देन इट्स ए गुड साइन फॉर द मार्केट, बट it's a thing that I want to say you is that whatever you are seeing in this kind of trend analysis, you might be like in a trouble if you get don't understand this trend how it works like on the previous data. So if you want to see it in a way that the trend it will be intact, okay, it's okay, fine. If this is 200 SMA and this is 20 SMA and this is 50 SMA, well and good, you might see a upward side. Now if you ask me, then due to the global factors, as you have, I think सभी को पता है ये, the globally the markets are not doing quite well and they are in a correction phase or maybe a crash is eventual. So I am expecting a crash that might be happening. So expecting a crash doesn't mean that ये कल ही हो जाएगा या फिर परसों हो जाएगा या फिर after the month also. But expecting a crash मतलब एक अच्छा सा downward rally. It will not be a correction phase. So what I am saying for tomorrow is that अगर यहाँ से नीचे की तरफ market open होता है in this kind of zones, then definitely this 200 SMA and this 50 SMA will be in a different tone then, मतलब तब market bearish बन जाएगा। तो market अगर bearish है then why to like trade in CE, right? So for the data what I have till now is that it is indicating that the market trend is bearish. The trend of the market will be bearish. So I am not good at handwriting all these things, please manage this. So market trend will be very bearish and bearish मतलब इतना भी नहीं कि 100 200 300 400 पॉइंट्स गिर जाए फटाफट, ठीक है, और उसके बाद भी आप पी खरीद लो और फिर दोबारा 400 पॉइंट गिर जाए। कुल मिला के 800 पॉइंट मार्केट नहीं गिरेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको ट्रेडिंग में इतना समझ नहीं है देन आस्क मी और यू गो टू सम अदर चैनल एंड अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली, क्योंकि देन आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मार्केट बियरिश मतलब ये नहीं कि धड़ाधड़ सब गिर जाएगा, ठीक है, इट्स नॉट लाइक गोइंग टू हैपन इन दैट वे। तो ट्रेंड तो मुझे मालूम ही चलता है कि मार्केट इट इज़ ए बेयरिश ट्रेंड बिकॉज whenever the opening will happen tomorrow you will see a gap down कितना तक होगा you have to be cautious, क्योंकि gap down अगर 1% के आसपास हुआ देन आई थिंक वहाँ पर थोड़ा बहुत निफ्टी खेल सकता है एंड उसके बाद और थोड़ा नीचे आ सकता है, बट दैट्स ए डिफरेंट थिंग क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए लाइक डेटा ड्रिवन प्रोग्राम, लाइक डेटा ड्रिवन ट्रेडर। सो मतलब कि डेटा जो भी बताता है आप वही करते हो, उसके सिवा आपके पास और कुछ भी चारा नहीं है। सो आई डोंट वांट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर टिल नाउ। द ग्लोबल डेटाज आर वीक। देर इज़ ए like there is a saying that the Fed and all those factors are there. So you have to be cautious about your investments if you are having, because they are going to come down. Now on the other side, if you look on Bank Nifty, you will see properly that Bank Nifty is also like quite following Nifty, so there is nothing new in this. It will be also bearish if the Nifty goes bearish. Now I have collected some of the like things that we had लाइक इन द प्रीवियस वीक, मतलब कि एक वीक से 5 दिन तक हमने कैसा ट्रेडिंग किया और हम लोग का कैसा सेटअप था, दैट आई एम गोइंग टू शो यू। ये था निफ्टी 50। मैं निफ्टी 50 का ही सिर्फ दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। आप तो
लाइक फ्लिप फ्लॉप करके देखते हो वीडियोस, तो बहुत सारे चैनल्स भी देखने पड़ेंगे आप लोगों को, आई नो दैट, एंड इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर गुड फॉर योर मेंटल पीस ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लूज मनी इन दिस वे और दैट वे. So ये आप देख ही सकते हो, दिस वाज द सेटअप फॉर द लाइक मंडे, दैट इज 14th June, एंड यू कैन सी दैट हाउ वी डिड दिस. सो इट वाज क्वाइट सिंपल एज इट इज़. यहाँ पर पैसा बनाया, यहाँ पर पैसा बनाया, उसके बाद यहाँ पर पैसा बनाया, तो पैसा तो बनता है, ठीक है. आपको सिर्फ आना चाहिए कि कैसे पैसा बनाए. Money is floating in the market and you have to just understand how you have to get that money. ठीक है. Now to get regular updates, let me say you there is a Telegram channel, and that channel's name is Shruti Advisory. You can hang out in there. You can search also. There are many other advisory channels you should follow also at the same time. Then only you will be able to differentiate between like the two foods. मतलब हम तो एक food देते हैं और they are also giving you a food. So without testing आपको मालूम कैसे चलेगा कि कौन सा क्या फूड है, ठीक है. Now let me show you something called on Tuesday what happened. Tuesday it was quite flat, and you can see we said that the possibility of the market will be remaining in the zone, and market remained in the zone. I think those who were in the Telegram channel, they were also like given the alert that do not trade today, or if you trade also be careful about your lot size or your positions, because market बहुत ट्रेंडिंग या फिर कुछ मूवमेंट नहीं था मार्केट में. Now on Wednesday it was something like this कि pivot से नीचे आके फिर support पे बहुत अच्छा support मिला उसको, and market remained in our zone. So this was of 16th June. Then on 17th June this was like this. 17th June was I think expiry, and 17th को बहुत ही अच्छा मार्केट था, क्योंकि like at first gap down, उसके बाद बहुत अच्छा ऊपर की तरफ rally, then it came down and again down. So it was a good market. पैसा भी बनाया, बहुत पैसा. See बहुत का मतलब कितना होता है, you have to be like aware of that. मतलब मेरे लिए बहुत मतलब if I am earning 2000 also वो मेरे लिए बहुत है. और अगर आप मानते हो कि आपके लिए 8000 इज बहुत, देन तो आपको थोड़ा बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज यू माइट लूज योर कैपिटल समडे और द अदर. Okay, so this is the chart of 18th June, and this was the trade setup. Actually, market went beyond our trading setup, and we did not do any kind of trading in that kind of zones. You naturally know this if you are a follower of this channel or you are in the Telegram. And there was a kind of what to say, it was a bearish and then it was bullish. So exactly what I am saying is that कल अगर मैं bearish बोल रहा हूँ, that doesn't mean कि 400 पॉइंट गिरेगा उसके बाद और 400 पॉइंट गिर जाएगा. You have to be careful in your positions. Stop loss देना देना मत भूलना, because it will be very volatile. If it becomes, there is a possibility if it will not be on the bearish side also bullish side. क्योंकि मैं I deserve the right to be wrong, and I want to be wrong because I want to check myself whenever I am wrong how much I am losing. Just remember this, that you should always be wronged, because अगर आप wrong नहीं होते हो, then you don't understand whether you are progressing or not. मतलब अगर wrong हुए तो how much you are losing, and when you are right then तो तब आप तो पैसा बनाओगे, that's a different thing. लेकिन आपको wrong होना पड़ेगा, क्योंकि wrong होने से ही आपको अपना mistakes, अपना सब कुछ देखने मिलता है. आपका साइकोलॉजी कहाँ पर जा रहा था, ग्रीड, लाइक जो भी पैसा मैं कमा रहा था वो ग्रीड में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, या फिर जो भी मैं लॉस कर रहा हूँ उसके बाद ये फेयरफुल में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं. यू हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स, एंड मार्केट इज़ अ गुड टीचर आई थिंक. उसके लिए तो मार्केट है, एंड मार्केट में अगर आप रहोगे तो मार्केट आपको सिखा देगा कि कहाँ पर क्या होना चाहिए और कहाँ पर क्या नहीं. सो टॉकिंग अबाउट जो मार्केट का एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन है फॉर 21/6/21. प्रिडिक्शन मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत के हिसाब से बहुत कुछ होता है. मेरे लिए कुछ और है, उसके लिए कुछ और है, इसीलिए मार्केट बनता है. क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू से दैट, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, सो आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एज द जीनियस ऑफ द मार्केट. लेकिन मैं इतना तक बताना चाहता हूँ कि as for my setup, it is going good and working well. So you might also follow this setup, or you can write down somewhere in your
notebook so that you can cross check me at the same time. लेकिन कहाँ से कहाँ जाएगा या फिर कैसे ट्रेडिंग करना है, दैट यू हैव टू आस्क मी पर्सनली, बिकॉज वो तो मैं ओपन चैनल में नहीं बता सकता आपको। तो जो कि सपोर्ट साइड में निफ्टी 50 का है वो है द फर्स्ट सपोर्ट एरिया स्टार्टिंग अराउंड 15,525 टू 15,540, एंड द सेकंड सपोर्ट एरिया 15,449 टू 15,467, and the third support area 15,384 to 15,401. The first resistance area of the Nifty 50 is that 15,658 to 15,679. Second resistance area 15,741 to 15,761, and the third resistance area 15,813 to 15,835. Now there is a pivot area which I always keep nowadays because there are some other guys also those who see all this data and उसके बाद वो अगर मार्केट फर्स्ट सपोर्ट एरिया में आया तो उसने वहाँ से शायद लाइक सी खरीद लिया था, क्योंकि उसको मैंने जितना तक बताया मार्केट मतलब कि ये अगर रेजिस्टेंस हुआ और ये सपोर्ट हुआ तो मार्केट जब यहाँ से इतना तक आया तो उसने सी खरीद लिया, सोचा था कि रेजिस्टेंस में जाएगा, उसके बाद वो सी बेच देता और पीई में घुस जाता। तो आप सोच ही सकते हो कि उसका साइकोलॉजी कैसा है, क्योंकि वो शायद इसी भ्रम में है कि मार्केट ये दो लाइन या फिर जोन या कुछ जो भी आप कह रहे हो, ये दो जोन में ही रहेंगे। क्या शायद क्या आपको ये ट्रेडिंग अप्रोच पसंद है? मतलब कि वो उसका जितना सोच है कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट तो मार्केट शायद इसी के बीच में ही रहेगा, तो हर समय क्या इसी के ही बीच में रहेगा? जस्ट फॉर इमेजिन मतलब वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई से कि सपोर्ट अगर टूट मतलब सपोर्ट में अगर आता है मार्केट, ठीक है, ये अगर सपोर्ट है देन देयर आर मेनी अदर क्राइटेरियाज टू एंटर इनटू ए ट्रेड, और या फिर आपको सोचना भी पड़ता है कि स्टॉप लॉस क्या होगा या फिर कुछ और बहुत सारे डेटाज है जो कि आपको पता लगाना है। उसके बाद आप पीई में घुसो या फिर सी में घुसो, दैट्स इट। तो यहाँ से उसके बाद सी में घुसना है या फिर पीई में घुसना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, मतलब आप कितना फ्यूचर विजन करते हो, ठीक है। ये दिस completely is derived from the runtime data, okay? You cannot just jump into a trade depending on the कि ये सपोर्ट में आ गया या फिर ये रेजिस्टेंस में चला जाएगा, उसके बाद रेजिस्टेंस में बेच दूंगा, फिर मैं पी खरीद लूंगा। दिस इज द पिवोट एरिया 15,606 टू 15,624, ये निफ्टी 50 का है। एंड देन निफ्टी बैंक के लिए फर्स्ट सपोर्ट एरिया इज 34,074 to 34,149, and the second support area 33,438 to 33,572, and on the resistance side first resistance area है 34,939 35,037, and the second resistance area 35,304 35,383, pivot area 34,578 to 34,620. Now what are the expectations? Nifty might be range bound and flat. I always say this because मेरे expectation बहुत ही कम है, मैं ज़्यादा प्रॉफिट तक वेट भी नहीं करता, जल्दी प्रॉफिट निकाल के भाग जाता हूँ, और लॉस भी जब होता है तब उतना ज़्यादा लॉस भी नहीं करता क्योंकि जल्दी लॉस देख मैं भाग जाता हूँ। आई एम वेरी फेयरफुल एंड आई एम वेरी नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट ऑल्सो अबाउट माई पोजिशंस। तो मैं अभी तक मार्केट में टिका हुआ हूँ शायद इसी के वजह से। Now everybody has their own approach. You don't need to copy me or copy someone else. ठीक है, लॉजिक के साथ मार्केट में रहिए, हैव नॉलेज, नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू शुड ऑलवेज नो कितना आपको लूज करना है और कितना आपको गेन करना है। Look, there are other things that we look upon while taking a trade. To learn, please register with us. You need to register so that you get to learn. Or we share our picture perfect setup with our registered client come investors in morning sharp around 8 a.m. Whether there will be a gap up or gap down, we share there. Even there are stock specific FNO trades too. Now मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई मेरे there are persons in the telegram channel, those who are in the telegram channel, वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर कॉल दे दूंगा फिर वो कमा के चले जाएंगे and they will make money, lots of buck. But सोच लीजिए, अगर आप सोचते हो ट्रेडिंग बहुत ही ईजी है या फिर ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, या फिर मैं ट्रेडिंग चैनल पे मतलब कि जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है
ये तो देखिए, पहले तो मैं एक एम्प्लॉई हूँ श्रुति एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी में, ये तो मेरा फॉर्म नहीं है। तो जो भी कॉल आता है मेरे पास वो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ पर हर रोज़ कॉल मिलेंगे तो शायद आप गलत हो। देन यू शुड लुक फॉर सम अदर, आई विल रिकमेंड ऑल्सो देयर आर सम अदर चैनल्स जहाँ पर आप कॉल्स मिल सकते हैं। देयर आर सम अदर चैनल्स, देन यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। ओके फ्रेंड्स, ओके ट्रेडर्स। सो अगर आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू गेट, बिकॉज पहला बात तो मुझे पता नहीं है आप कितने प्राइस पर बाई कर रहे हो एंड एट व्हाट प्राइस यू विल सेल, और आपका स्टॉप लॉस कितना होता है एंड आपका क्वांटिटी साइज कितना होता है। ये बात अगर मुझे पता होता तो शायद मैं आपको लाइक वहाँ पर थोड़ा बहुत गाइड कर सकता था, लेकिन मुझे पता नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर कॉल्स जो भी था वो सब बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ने पैसे लूज़ किए ड्यू टू माई कॉल्स। क्योंकि उनको मुझे बताना था कि यू डोंट नीड टू सेल राइट नाउ, यू होल्ड इट फॉर 1 more hour एंड देन सेल आफ्टर 1 more hour। तो मुझे पता नहीं था। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। फ्री में रहोगे तो उतना तो झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ मैं सबको तो ये बात नहीं कर रहा हूँ कि यू रजिस्टर विथ अस एज सुन एज पॉसिबल। एक बात समझ लीजिए कि अगर आप किसी चैनल पे हो तो यू शुड ऑलवेज नो बिहाइंड योर ट्रेड्स, लाइक व्हाई यू आर ट्रेडिंग दिस, मतलब क्यों आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑन दैट सी पी और वट एवर इट इज़। और एक बात दैट इज़ वेरी सिंपल कि मेरे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, दे आर सेइंग कि मेरा इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया और मुझे इतना रिकवर करना है, उसके बाद मैं रजिस्टर करूँगा या फिर कुछ करूँगा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप शायद गलत प्लेस में हो। जितना जल्दी हो सके यू गो टू सम अदर चैनल, वहाँ पर बहुत सारे कॉल्स मिलेंगे, ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे। आप वो देखो और सीखो और उसके बाद कुछ काम करो। श्रुति एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी आपके बस में नहीं है और ये आपका काम भी नहीं है। यू गेट आउट ऑफ दिस चैनल एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज द डायरेक्ट आंसर दैट आई कैन गिव टू यू। बिकॉज आपके दिमाग में अगर बैठा हुआ है कि मुझे अपना लॉस जो है वो कवर अप करना है उसके बाद मैं आऊँगा, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं भी एक ट्रेडर हूँ और मैंने 25 lakhs गवाए थे इन द मार्केट इन माई बिगिनिंग डेज। तो अगर मैं वैसे सोचता कि मुझे आकर 25 रिकवर करना है उसके बाद कुछ करना है, ठीक है, देन यू आर इन द रॉन्ग प्लेस माई फ्रेंड। यू शुड गो एंड डू समथिंग एल्स। लाइक आपको और भी बहुत काम है, वो काम कीजिए। बिजनेस आता है तो बिजनेस कीजिए। इफ़ यू आर इन ए गवर्नमेंट जॉब देन डू योर गवर्नमेंट जॉब प्रॉपरली। ट्रेडिंग इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। दैट्स इट, थैंक यू। आज थोड़ा स्कोल्डिंग या फिर जो भी है हो गया, ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। बिकॉज हर किसी के टाइम में लाइक नॉट एवरी डे like is the same, so please bear this and that's it.